Every year, we see a lot of smart, capable, hardworking candidates who, if you give them a chance to write mains, they will clear the entire exam. But इन लोग से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है. And this is not just people who are stuck in this exam cycle, these are also rankers. मतलब यूपीएससी prep.com के पास स्टूडेंट्स भी ऐसे रहे हैं, बहुत से अलग रैंकर्स से भी मैंने बात करी है, एंड सबका ये मानना है कहीं ना कहीं कि लाइक व्हेन दे गेट सिलेक्टेड देयर इज अ बिग रिलीफ कि अब प्रीलिम्स दोबारा नहीं देना पड़ेगा. तो ऐसे में नेचुरली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आस्क कि भाई व्हाई इज दिस so much fear around this part of the exam? And to understand this, we have to appreciate the fact that while UPSC preparation overall is a marathon, you have to do mains, optional, answer writing, essay writing, ethics, कुछ करते ही जाना है. Prelims is a sprint. And 0.1 marks you're in or out of the list, and एक साल की पूरी मेहनत वो 2 घंटे के पेपर में निकल जाती है. तो नेचुरली ऐसे में घबराहट भी बहुत होती है, स्ट्रेस भी बहुत आता है, एंड इस स्ट्रेस में अ नंबर ऑफ पीपल व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज दे जस्ट स्टार्ट रनिंग विदाउट लुकिंग एट कि भाई कौन सी डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं. तो दे ऑल्सो एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विच डज नॉट लीड टू द आउटपुट दैट दे डिजायर. अब ऐसे में नेचुरल सी बात है, a question that is very often asked is, can it be cleared? And when somebody is asking this question, they are effectively asking two questions. Number one is, can it be cleared? And the second question is, can you clear it? Or rather, can I clear it? So let's deal with these questions one by one. So let's start with the question of, can it be cleared? Now, it का क्या मतलब है यहाँ पे? That we are talking about the entire prelims exam. And इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई जीएस भी करना है, सीसैट भी करना है, करंट अफेयर्स भी करना है, उसके अलावा मुझे टेस्ट भी देने हैं, मुझे रिविजन भी करना है. सो मेनी थिंग्स टू डू. इज 5 months enough of a timeline to do all of these things? Short answer, if I give you, yes, it can be cleared. But there are a few things that we need to explain over here. सबसे पहली चीज, 15 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं एंड ओनली 1000 गेट सेलेक्टेड, एंड दिस इज अ सक्सेस रेट ऑफ लेस देन 0.1%. ऐसे में होता क्या है दैट अ नंबर ऑफ पीपल ट्राई अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड there is no fixed pattern, method or strategy that will always work. तो ये जो selected लोग हैं इनकी strategies में there are some similarities but there are also a lot of differences. So some people have given 5 tests, some people give 100 tests, some people don't give tests at all, and अब वो आके तो यही बोलेंगे कि भाई मैंने ऐसे किया और मेरा हो गया. तो what is good for you? That is for you to figure out. The main and important part is that they chose one strategy and they stuck to it. रोज strategy अगर आप बदलोगे तो then that is the biggest problem that you will face in this phase of the exam. 5 महीने में क्लियर करना है, एक प्लान ऑफ एक्शन लो और चिपके रहो. Now there is a second problem that gets associated with all of this. क्या कि whenever I'm done with one subject, तो एक सब्जेक्ट करते ही मेरे पास एक और टास्क ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है रिविजन का, कि भाई इस सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है, अगला सब्जेक्ट करोगे अब 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, टेस्ट भी देना है. तो माय टास्क लिस्ट जस्ट सीम्स एंडलेस. इट जस्ट कीप्स ऑन गेटिंग एडेड टू, एंड मतलब कभी भी मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि भाई मैंने कर लिया है, क्योंकि बहुत सी चीजें, नेचुरल सी बात है, ओवर टाइम यू कीप फॉरगेटिंग. एंड रिवीजन हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वर फॉरगेटिंग. तो इन सब का इलाज क्या है? इन सब का सबसे पहला इलाज ये है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू 100% ऑफ एंटायर सिलेबस. सब कुछ आप इस एग्जाम में कर ही नहीं सकते. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैन इट बी क्लियर्ड, you have to accept the fact that you will only be able to do 90 to 95% of the syllabus. And इतना भी अगर आपने कर लिया, 90 to 95% of syllabus also you are able to complete, current affairs included, you will be in a very good position in order to clear UPSC. Choosing a strategy and sticking to it is all fine, but there is a second problem that comes up, which is कि as soon as I'm done with the subject, तो मुझे रिवीजन भी करना है, मुझे उनके टेस्ट भी देने हैं, टेस्ट का मुझे फिर रिव्यू भी करना है. तो at any given moment, I am constantly buried in backlogs. I'm constantly buried in, there are so many things to do. Tasks मेरे endless होते जाते हैं, and it gets very stressful. तो having somebody out there who can help you, guide you कि भी अच्छा इतना करना है, इतना कर लोगे, good enough, move on, move next. क्योंकि with this exam, 100% completion of everything in the syllabus is impossible.
क्योंकि उन्होंने बोल दिया है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अब मतलब कोई लिमिट नहीं है इस चीज का। सो देयरफॉर 90 to 95% कवरेज मुझे करके चलनी है। एंड ऐसे में अगर पिन पॉइंट गाइडेंस मुझे मिल जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत कुछ छूटेगा छूटेगा कोई बात नहीं। इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल टू एसोएज आवर ओन सेंस ऑफ कि भाई बहुत कुछ करना है, कब करेंगे, कैसे करेंगे। सो कैन इट बी डन? आई विल से डेफिनेटली यस। नाउ जो दूसरा सवाल हमारा आता है, कैन यू क्लियर इट और कैन आई क्लियर इट? हो तो सकता है, मतलब ये तो बता दिया कि भाई पढ़ना ये है वो है, सब चीजें हो गई, बट क्या मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी? एंड दिस क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ टाइम्स ड्रिवन बाय द फैक्ट दैट वी आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, वी आर अफ्रेड ऑफ वेस्टिंग अनदर ईयर। एंड ये नेचुरल सी बात है कि भाई जब सिविल सर्विसेज एग्जाम का ये साइकिल हमारा ऐसा रहता है, एक ये पेपर आपने फेल किया, अब अगला साल अगला अटेम्प्ट देना, तो घबराहट होती है, स्ट्रेस लगता है। एंड इट्स वेरी वेरी नेचुरल फॉर अस टू फील कि यार खराब ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नाउ शुरुआत इस फेयर की होती है फ्रॉम आई एम अफ्रेड ऑफ फेलियर, एंड इट्स वेरी नेचुरल टू बी अफ्रेड ऑफ फेलियर बिकॉज ऑफ हाउ द स्कूलिंग सिस्टम हैज ट्रेन्ड अस। बट स्लोली ओवर टाइम it seeps into our subconscious, and when it starts seeping into our subconscious, this fear of failure, this fear of wasting a year, this fear of कि मैं एफर्ट डालूंगा और उसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा, तो स्लोली हमारे सबकॉन्शियस में एक सवाल उठने लग जाता है, एम आई गुड इनफ? नाउ a lot of you watching this video might have asked yourself this question, and naturally I had to, मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने भी अपने आप से ये सवाल पूछा था। अब इसका प्रॉब्लम क्या होती है इससे, जब हम ये सवाल अपने आप से पूछने लग जाते हैं ना कि एम आई गुड इनफ, वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ वे फॉर अस टू अवॉइड फेसिंग अ डिफिकल्ट रियलिटी। प्रोक्रेस्टिनेशन इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ कि शायद अगर मैं काम करता तो मैं फेल हो जाता, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आई हैव एटलीस्ट दैट सबकॉन्शियस जस्टिफिकेशन टू माई सेल्फ दैट फेल तो मैं इसलिए हो गया कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई कर लेता तो हो ही जाता। एंड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन नेचुरली ब्रेक्स योर कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी ही नहीं है, तैयारी ही नहीं करी, दिन में 7-8 घंटे पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, तो नेचुरली नहीं होने वाला है। सो समवेयर और द अदर दिस फियर getting into your subconscious leads to a lot of problems. And let me tell you a story about this. When I was giving my third attempt, I had already failed 2 prelims. 2 prelims fail होने के बाद अब तीसरा attempt मैं दे रहा हूँ। Obviously I had used to have a lot of confidence in myself कि नहीं मैं कर लूंगा, I am smart, I am capable, this that XYZ, but 2 बार जब फटका लग जाता है तो then इंसान is forced to re-evaluate and think about कि am I even good enough? Now in order to assuage that self guilt conscience, जो भी आप उसको बोल लो, I was working out quite heavily also. Every day I used to run 5 to 10 kilometers. मैं bench press 100 kilos टाइप कर ले रहा था उस टाइम पे, मैं squats 150 किलो टाइप तक कर ले रहा था। मतलब I was physically very very fit. I was meditating every day to be mentally sharp, to be prepared for the exam. And as the exam drew closer, I started getting nightmares. Right? And ये nightmares में क्या हो रहा है कि I am running on a track, and वो ट्रैक पे देर इज अ मॉर्बिडली ओबीज पर्सन हु इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड जितना चाहे मैं जोर लगा लूं, मैं उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूं। आई गॉट डिड नॉट गेट दिस ड्रीम वंस, आई गॉट दिस ड्रीम मल्टीपल टाइम्स। तो अब देखो, एक बार कोई ड्रीम आती है, यू कैन टेल इट दैट इट इज समथिंग अब्सर्ड, बट इफ यू गेटिंग समथिंग मल्टीपल टाइम्स, जनरली आवर ब्रेन इज एसोसिएटिंग सम image or abstract idea with this. I took it in that moment to mean कि मुझे कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस में फील हो रहा है कि यार ये पेपर नहीं निकलने का है। I had a lot of belief in my intelligence कि मैं कर लूंगा, ये है वो है, but somewhere I had lost that belief in myself that I am capable of clearing this exam. And I thought कि that is something that needed to be addressed. So in order to counter this, during that attempt, what I started doing is I would wake up early morning, whenever, जब भी मैं उठता था, I would look at myself in the mirror and remind myself that you can do this. This was a way for me to signal to my subconscious mind, क्योंकि जब आप उठते हो बिल्कुल फ्रेश होते हो, तो तब आपका subconscious mind थोड़ा accessible रहता है. Dreams are a place where your subconscious mind is accessible. So I started reminding myself constantly that you can do this. And
थ्रू दैट द आइडिया वो सिंपल कि आई वॉन्टेड टू रीबिल्ड दैट बिलीफ इन माई सेल्फ. नाउ कहानी ठीक है, बढ़िया है, बट कहानी का सार क्या है? कहानी का सार ये है कि इवेंचुअली इन ऑर्डर टू क्लियर प्रीलिम्स यू डोंट जस्ट नीड द राइट एफर्ट, you also need good guidance, and you also need a good support system which can push you, which can motivate you when you are down, and which can force you to expand or get out of your comfort zone. क्योंकि ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी. आज जो आप हो वैसे शायद प्रीलिम्स क्लियर ना हो, बट इन 5 months you can become the person who is capable of clearing prelims. So this is where I tell you about the prelims SIP. And hear me out to the end, because there are some surprises for each and every one of you. SIP, when we talk in the finance terms, is that slow, steady, systematically मैं invest करता रहूं छोटा छोटा amounts, small amounts, eventually in the long run give me massive returns. And the course that we have designed is based on these same principles. How do you clear prelims? Through slow, steady investment, everyday basis पे into your own learning, into your own understanding of the exam and of each of the subjects. So, होगा कैसे इसमें? Number 1, we will start with being consistent. Procrastination हम कब करते हैं? जब हमें पता नहीं होता कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है. तो in this course, we will provide you with a daily plan. Daily reading आपको prescribe की जाएगी कि ये टॉपिक आपको पढ़ के आना है. On the very next day, there will be a mini test. For example, मंडे का रीडिंग आपको दी गई है, ट्यूसडे को आपको उसका 25 क्वेश्चन का एक मिनी टेस्ट होगा. दिस टेस्ट विल ऑल्सो हैव अ डेडलाइन. 10 PM ऑन ट्यूसडे इज द लास्ट टाइम दैट यू कैन गिव दिस टेस्ट. एंड इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज रहेगी कि इफ यू गिव इट बिफोर द डेडलाइन, यू विल बी पार्ट ऑफ अ लीडर बोर्ड एंड अ कंसिस्टेंसी मीटर. दोनों चीजें यहां पे बहुत जरूरी है. लीडर बोर्ड विल कीप यू मोटिवेटेड, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंसिस्टेंसी कभी कभार इंटरनल होती है, बट कभी कभार इफ आई हैव अ राइवल, इफ आई हैव अ पर्सन पिन पॉइंटेड कि यार ये इसके मेरे से ज्यादा नंबर आते हैं हर बारी, आई वांट टू ओवरटेक दिस पर्सन. समटाइम्स हैविंग दैट एक्सटर्नल फैक्टर ऑल्सो रियली हेल्प्स. तो एवरी डे वी विल बी बिल्डिंग a daily leaderboard of the people who scored highest in any given section test, and we will also be tracking your consistency for you. इसके साथ साथ every Sunday there will be a full length test. क्योंकि अब होता क्या है, 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब मैं कर लेता हूं तो ठीक है, आई एम ग्रेट एट सॉल्विंग 25 क्वेश्चंस, बट इन द एक्चुअल एग्जाम आई विल बी डूइंग 100 क्वेश्चंस. तो एवरी वीक 100 क्वेश्चंस का एक फुल टेस्ट भी आपको दिया जाएगा इन ऑर्डर टू टेस्ट योर प्रोग्रेस कि भाई 25 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, अब 100 पे दोबारा इसको करके देखेंगे. इसमें अकाउंटेबिलिटी आपकी मेंटेन होगी थ्रू योर कंसिस्टेंसी मीटर एंड इवन थ्रू रेगुलर चेक-इन्स विद मेंटोर्स. रेगुलर चेक-इन्स विद मेंटोर्स आर नॉट जस्ट कि भाई आपको रेगुलर मेंटर कॉल दे दी जाएगी. दिस इज अबाउट राइट स्ट्रैटेजी, जहां पे मोटिवेशन, आपके माइंडसेट पे काम, एंड उसके साथ मेंटरशिप के बारे में हम बात करेंगे. यहाँ पे वीकली ग्रुप सेशंस होंगे विद मी एंड शशांक रत्नू सर, who is also the co-founder of upscprep.com. And then you will also have one-to-one mentorship sessions for doubt clearance. ये one-to-one sessions में mentor कौन होंगे? आपके past rankers, subject experts who have given multiple interviews with UPSC. तो with these people guiding you, helping you each step of the way, we are aiming to keep you on track all the time from the start. And यहाँ पे there is no limit. This is no limit to mentorship. Unlimited mentorship है ये. जितनी बार भी आपको बुक करनी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन बुक अ मेंटर कॉल एंड हैव अ डिस्कशन विद योर मेंटर्स. इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू फॉलो अ सिंपल लूप: रिव्यू, टेस्ट, मास्टर. प्रीलिम्स इज नो लॉन्गर जस्ट अ नॉलेज टेस्ट. आज की डेट में इट इज अ प्रेशर टेस्ट कि भाई आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी है अंडर प्रेशर. क्योंकि एग्जाम हॉल में जो एकदम से प्रेशर बनता है ना, तो बहुत ऐसा होता है कि भाई आई न्यू दिस थिंग बट आई कैन नॉट रिकॉल इट इन दैट मोमेंट. तो इसके लिए वी नीड टू सब्जेक्ट आवर सेल्फ टू स्ट्रेस टेस्ट्स. रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस टेस्ट ये इसी कोर्स में आपको मिलेंगे, क्योंकि एवरी डे द रीडिंग मटेरियल दैट विल बी गिविंग यू विल रिक्वायर यू टू कमिट 6 to 7 hours ऑफ एफर्ट. एंड अगर आपको लग रहा है कि 6 से 7 घंटे का मैं ये एफर्ट यहां डाल रहा हूं, तो मैं करंट अफेयर्स कहां करूंगा, मैं CSAT कहां करूंगा, यू विल हैव टू मेक टाइम, यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ अ लिटिल हार्डर. एंड यहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो दैट इज वेयर योर one-to-one mentorship will be helpful. Talk to a mentor, talk to us, and we'll figure out a way for you to make this work. The idea is simple. Through this course,
we want to ensure that you clear UPSC Prelims 2026. This is the Strategic Intensive Practice Course, the Prelims SIP, and the price of this course is 4999. तो अगर इस कोर्स का आपको शेड्यूल देखना है या कुछ भी और इस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो, you can visit courses.upscprep.com. Now, with that, we come to a little special something that I had promised to you in the beginning. ये little special something क्या है? The first and foremost, it's for all old students of upscprep.com. We are offering a 50% discount right at the start, and this course will only be worth 2499. This is inclusive of all taxes. ऐसा कुछ यहाँ पे hidden नहीं रहेगा कि भाई आप पेमेंट करने जाओ और फिर सडनली यहाँ पे कुछ और ऐड हो गया, जीएसटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया. नहीं, nothing. This is the price that you will pay. And if you've been an old student of upscprep.com, 50% discount, you will get this. Now, the second surprise, if you are one of the 5% most consistent students in this course, we really do believe that you will end up clearing prelims. And we will give you free access to our mains programs, which are worth 17,999. Mains focus group जो हमारा था पिछली बार, which was GS Advance and Write Unlimited, both of those courses were 17,999. We will give that course to you for free if you are one of the 5% most consistent students in this course, because that is the amount of faith that we have in this course. कि अगर अगले 4 महीने आपने ये काम कर लिया, डेली बेसिस पे टेस्ट कर लिया, रिव्यू कर लिया, मेंटर से बात कर ली, you will find success in UPSC Prelims 2026. So that's all for now. All the best.